Good morning, students. Students, we are going to continue with the chapter Retirement of a Partner. This is your lecture 2. We will discuss today about the topic valuation and adjustment of goodwill. Already we have discussed a lot about the topic goodwill bache in the different chapters. Now in the retirement, how we treat goodwill in the books of account when the partner is going to be retired. You know that, bache, when any partner retire from the firm, he or she is liable to get share of goodwill. That means when any partner is going to leave due to his retirement, the firm, he must get a due share of his goodwill of the firm. Because why he is going to get that? Because goodwill was earned by firm when he was a partner. क्योंकि जब वो पार्टनर था फर्म में एट दैट टाइम द फर्म वाज अर्निंग द गुडविल, द फर्म वाज एंजॉयिंग द गुडविल, सो ही मस्ट गेट अ ड्यू शेयर आउट ऑफ दैट फर्म्स गुडविल, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म्स गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. So he will be compensated by gaining partner. The thing is, who is going to give the amount of due share of goodwill to the retiring partner? It will be compensated by the gaining partners. Why? Because gaining partner, that means remaining or continuing partner, they definitely get something as a benefit out of a share of profit. क्योंकि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है रिटायरिंग पार्टनर का बचे, दैट विल बी शेयर्ड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन सम स्पेसिफिक रेशियो. अदरवाइज इफ इट इज नॉट मेंशन, इट इज ऑलवेज द ओल्ड रेशियो. So that way the gaining partner, they should compensate the retiring partner. Clear bache? The now question arises ki what is the amount of goodwill that should be given to the retiring partner? For that reason we have to calculate goodwill of the firm. It will be given goodwill of the firm into retiring partner share of profit. जब आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्म की गुडविल को जो हमें दी होगी एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, वी विल गेट द अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल. सो फॉर दैट वी विल हैव different treatment in the books of account. We will discuss that. First, when goodwill does not exist in the books, either goodwill can be existed or it cannot be existed. So first case, when goodwill does not exist in the books, in that case we have to put the journal entry, that is gaining partners capital account stated to retiring partner capital account. तो जब भी हम कोई रिटायरिंग पार्टनर जाता है, बच्चे रिटायर होता है, इमीडिएटली हम गेनिंग शेयर निकालते हैं विच इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. तो कुछ पार्टनर्स का गेन आता है, कई बार सेक्रीफाइस भी आ जाता है किसी पार्टनर का. सो इन केस द पार्टनर्स आर गेनिंग पार्टनर, दे विल कंपनसेट एंड द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. फॉर दैट वी हैव एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और इवन करंट अकाउंट इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड to retiring partner capital account. Which ratio will be used? Gaining ratio. So goodwill will be given at the time of retiring partner. वहाँ पे दी होगी आपको करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, उसमें से आपने गेनिंग रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना बच्चे और गेनिंग पार्टनर से लेकर रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करना है. क्लियर? देन वी हैव समटाइम्स गिवन व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज एट फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ, है ना, कि गुडविल जो है फुल वैल्यू पे हमें रेज करनी है और उसको इमीडिएटली राइट ऑफ भी करना है. तो जब हम गुडविल को रेज करते हैं बच्चे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमेशा रेज करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि गुडविल इटसेल्फ इज ए एसेट. एसेट व्हेन इंक्रीज इट इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन +1 class 2. So according to that, what is your entry? Goodwill account debited to all partners capital account, all include retiring partner also. Which ratio we will use for this? Old ratio, right beta? So what amount of the goodwill we will take? The goodwill at the time of retirement given. जो दी होगी आपको करंट वैल्यू, उसका हम क्या करेंगे? वही कि that amount is to be raised with full value. Goodwill account debited to all partners capital account. In the old ratio it will be raised. Then whatever goodwill is raised, that should be write off, because accounting standard does not allow us to show the goodwill
एट द रेज वैल्यू, उसको इमीडिएटली राइट ऑफ भी करना पड़ता है बच्चे। सो व्हेन इट इज टू बी राइट ऑफ, हमारी एंट्री क्या होगी फिर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जब गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो शुड बी क्रेडिटेड। जब हम रेज करते हैं तो गुडविल को हम क्या करते हैं बच्चे, डेबिट। और किसको डेबिट करेंगे जब हम राइट ऑफ करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब ऑल वर्ड नहीं लिखा हमने, क्या लिखा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट क्या आ गया, फिर से वही, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब इसका नेट इफेक्ट देखेंगे, वी विल हैव द सेम एंट्री, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब आपने ये राइट ऑफ करनी है बच्चे, इट शुड बी राइट ऑफ इन द न्यू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, whatever we have discussed. First of all, कि when the partner retired, he must get share of goodwill. ठीक है, क्यों इसको दे रहे हैं, because he has earned the goodwill for the firm when he was working as a partner, so he must get the due share out of the goodwill, firm's goodwill. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्म की गुडविल दी होगी आपको, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। देन वी यूज टू पुट द various entries in different cases, accounting treatment of goodwill according to accounting standard 26. First, when goodwill does not exist in the books, जब goodwill exist नहीं करती, in that case we need to put the entry that is gaining partners capital account debited to retiring partners capital account. Gaining ratio will be used. Then we have when goodwill account is raised at its full value. बच्चे, कई बार हमें गुडविल फुल वैल्यू पे रेज करनी पड़ती है, जब रेज करते हैं उसको इमीडिएटली राइट ऑफ भी करना पड़ता है। तो जब रेज किया आपने, करंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन होगी, उस फुल वैल्यू पे आपको रेज करना है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में आपने गुडविल को क्या किया बच्चे, रेज किया। फिर आपने इसी गुडविल को क्या करना है बच्चे, राइट ऑफ करना है। लेकिन जब राइट ऑफ करना है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे एंड गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो वो हमने क्या सीखा कि अगर दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट निकाला जाए, नेट इफेक्ट में वही रह जाएगा बच्चे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? Then we have goodwill is raised only to the extent of retiring partner's share and is written off. पहले तो हमने क्या किया था, गुडविल रेज एट इट्स फुल वैल्यू। अब हम गुडविल को रेज करेंगे, लेकिन कितनी, जितना रिटायरिंग पार्टनर का फर्म की गुडविल में शेयर है उतनी, और इमीडिएटली इसको राइट ऑफ भी करेंगे बच्चे। तो जब हम रेज करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाता है बच्चे, और अब किसको क्रेडिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हमने किया था ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री गुडविल रेज करने की, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन हिज गुडविल का शेयर जो है रिटायरिंग पार्टनर को दिया होगा, और करंट वैल्यू ऑफ गुडविल भी हमें गिवन होगी, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के हमें ये एंट्री शो करनी है। देन व्हेन गुडविल इज टू बी राइट ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ भी करना है, तब आपकी एंट्री क्या है बच्चे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो राइट ऑफ करते वक्त आपके गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और गुडविल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है बच्चे? तो अगर फिर से देखा जाए, आपकी एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? सो डिफरेंट केसेस वी हैव व्हेन गुडविल इज रेज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड इज रिटन ऑफ। क्लियर? अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है कि गुडविल की एंट्री जो है, गुडविल फुल वैल्यू उसकी मार्केट करंट वैल्यू दी होगी, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, और एंट्री आपने दिखा देनी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूजिंग द गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट वी हैव व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। पहले हमने क्या किया, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम करने लगे हैं बच्चे व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो जो भी गुडविल एग्जिस्टेड गुडविल होती है, अपीयर्स इन द बुक्स होती है, उसको हम पहले क्या करते हैं बच्चे, राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। राइट ऑफ करने की नॉर्मल एंट्री आपको पता ही है बच्चे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ऑल इंक्लूडिंग रिटायरिंग टू, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ऑलवेज ओल्ड रेशो।
क्लियर, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए हमेशा ही राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड रेशो है। हाँ, अगर आपने गुडविल रेज करके राइट ऑफ किए तो न्यू प्रॉफिट रेशो में राइट ऑफ होती है। देन नेक्स्ट वी हैव गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेप्ट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने दिखानी है। पहले तो राइट ऑफ करने की एंट्री दिखा दी विच अपीयर्स इन द बुक, और जो करंट वैल्यू ऑफ गुडविल है उसमें से हमने गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेप्ट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर हिज ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्लियर, इन द गेनिंग रेशो। Then next we have when any partner out of continuing partner is a sacrificing partner at the time of retirement। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि जब भी हम गेनिंग शेयर निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही गेनिंग हो बच्चे। सम पार्टनर में बी, एनी वन पार्टनर में बी द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तब उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी बच्चे, लिटिल बिट डिफरेंस के साथ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेप्ट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर को तो डेबिट हमने करना ही करना है, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट भी करना है, लेकिन साथ ही कंपनसेट किसको किया जाएगा, बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर बच्चे? Now we will conclude the topic, that is hidden goodwill. Hidden goodwill by name it is very much clear, which is not given, but we can calculate this by using one formula, hidden goodwill of a retiring partner, amount decided to pay। एक होती है बच्चे अमाउंट हमें डायरेक्टली नहीं दी होती, निकालनी पड़ती है बाय मेकिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लेते हैं, हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी प्लस करते क्रेडिट करते हैं, लॉसेस को भी डेबिट करते हैं, रिजर्व्स वगैरह भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो उसमें एडजस्टेड अमाउंट विच इज़ ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर वो निकाली जाती है। लेकिन अगर बाय चांस हमें लमसम में उसकी पेमेंट दी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल के अमाउंट निकालेंगे, दैट गुडविल इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल। तो फॉर्मूला क्या हो बच्चे, अमाउंट डिसाइडेड टू पे, जो हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करने लगे हैं, माइनस एडजस्टेड अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जो उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू आती है बाय वेरियस एडजस्टमेंट, द डिफरेंस ऑफ दिस टू विल बी कॉल्ड एज रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल, ठीक है। सो इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ योर बुक, दैट इज एग्जाम्पल 19। I'll just read the statement first, बच्चे। Amal, Vicky and Chandu, they are partners sharing profits in the ratio 1:2:3. So instead of full name, I will just use A, B, C. We have given बच्चे old ratio, that is 1:2:3. Clear? Chandu retires and his capital after making adjustment. Who is going to retire बच्चे? ये कर लिया करो। Chandu retired and his capital after making adjustments for reserve and gain profit on revaluation is 2,20,000। तो चंदू की एडजस्टेड कैपिटल क्या है, 2,20,000, राइट बेटा। Amal and Vicky agreed to pay him 2,50,000 in full settlement of his claim। Amount to be paid by remaining two partners 2,50,000, ठीक है। एज पर फॉर्मूला में दोनों चीजें चाहिए, हमारे पास हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3। तो वी हैव गिवन NPR, दैट इज बिटवीन A and B, 1:3। क्लियर बच्चे? We need to show the journal entry. So what is the solution? We know that first of all we have to calculate retiring partners share of goodwill. By using the above formula we have written, so amount paid 2,50,000, amount adjusted amount of capital of retiring partners 2,20,000. So what is the hidden goodwill come out,
30,000. किसकी गुडविल आई है बेटे? रिटायरिंग पार्टनर की. क्लियर है बच्चे? सो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो मीन्स न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर. क्लियर? वी विल कैलकुलेट फर्स्ट फॉर ए. ए का न्यू क्या है बच्चे? 1/4 माइनस ओल्ड 1/6. LCM 24. So what is the result? 2/24. Likewise we will do B. B's new is 3/4. It is old 2/6. LCM 24. 6 3 is 18. 8. 10/24. So what is the gaining ratio? That is 2:10. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें क्या आ गया बच्चे? 1:5. तो 1:5 आपकी गेनिंग रेशियो है बच्चे. अब इसमें हमने क्या करना है? वी हैव टू शो द जर्नल एंट्री. आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी फिर? राइट. तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो हमारे पास गेनिंग पार्टनर ए और बी दोनों ही हैं बच्चे. ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट. We know amount of goodwill we have calculated hidden 30,000 and gaining ratio we have calculated 1:5. तो 1:5 में अगर हम 30,000 को डिवाइड करेंगे वन टाइम इट विल बी 1/6. That means 5,000 for A. Then B it is 30,000 into 5/6. It will be 25,000. Clear है बच्चे? So by using formula of hidden goodwill, we come to know about the retiring partner share of goodwill. After that, we have calculated gaining share of the partner A and B, which comes out 1:5. We know from retiring partners goodwill comes out 30,000. Gaining partners capital account debited to retiring partner capital account. So by this, we have completed the whole topic of your valuation and adjustment of goodwill बच्चे. So one by one we will complete the topic and go on practicing the number of questions given in the exercise yourself. Thank you very much. Have a nice day beta.